Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new chapter that is linear regression. So, linear regression basically ये जो chapter है, this is based on थोड़ा सा part of your 11th standard, a chapter called as correlation. Yes, उसी का आगे का version है regression analysis. So, यहाँ पे what do we understand by the term regression analysis? So, regression analysis is nothing but is used to measure statistical relationship between two or more variables. So, over here basically it is an algebraic equation between two or more variables to estimate value of one variable given the another variable. So regression analysis का meaning basically ये होता है, एक equation रहेगा जिसमें we have two variables out of which one of the variable is known and second variable we predict the value of that. That process is called as regression analysis. So यहाँ पे हम लिखेंगे an algebraic equation which predicts the value of one variable knowing the value of another variable. So this process is nothing but what? Regression analysis. ये होता है उसका basic meaning. Now we need to understand यहाँ पे कुछ basic terms. That is, one of the variable will be called as what? Dependent variable, and one of the variable will be called as independent variable. Now what is a dependent variable? Dependent variable is also called as response variable. So the variable whose value is predicted using the algebraic equation is called the dependent variable or the response variable. So यहाँ पे we'll say something called as dependent variable or it is also called as what? Response variable. So dependent variable बोला या response variable बोला, it is one and the same. We say the variable whose value is predicted using the algebraic equation is called as what? Dependent variable. So is called as dependent variable नहीं लिखेंगे तो ये dependent variable का ही basic condition लिखा है. So यहाँ पे हम लिख सकते हैं predicted using the algebraic equation. Yes, this thing is called as what? Dependent variable or response variable. So ये हो गया एक और term जो हमने सीखा. Next term which we have over here is independent variable, or that is also called as predictor variable, or it is also called as regressor. So independent variable or predictor variable or regressor is one and the same. The variable used, yes, I'll say the variable whose value is used as the basis for prediction is called independent variable. So यहाँ पे हम लिखेंगे as independent variable. Yes, we can say it is also called as predictor or it is also called as regressor. Yes, ये सबका मीनिंग क्या है? सेम.
Yes, we'll say the variable whose value is used, the variable whose value is used as the basis for predicting or prediction is called as independent variable. So ये हो गया independent variable. We can also say it is called as what? Predictor variable या regression बोलेंगे. It is one and the same. So ये हो गया second term, that is dependent variable के बाद independent variable. So this was the basic thing. So right now we'll do one thing. We'll make a note of this part. We'll start with the next question. That is question number 2. Calculate the regression equation of x on y and y on x from the following data. X 10, 12, 13, 17, 18. Y 5, 6, 7, 9, 13. So अगेन x और y के वैल्यूज दिए गए हैं एंड यहां पे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y भी ढूंढना है, y ऑन x भी ढूंढना है. सो सबसे पहले x और y, यस इसके वैल्यूज डायरेक्टली दिए हुए हैं. सो विल जस्ट लिस्ट डाउन दोज वैल्यूज. ये है 10, 12, 13, 17, 18. यस यहां पे लास्ट में लिख दूंगा एज टोटल. y के वैल्यूज है 5, 6, 7. सो 5, 6, 7, 9 एंड 13. यस आगे के कॉलम्स वापस से क्या आएंगे वो डिसाइड करने के लिए फर्स्ट लेट अस कैलकुलेट द टोटल ऑफ x एंड टोटल ऑफ y एंड देन चेक फॉर x बार का वैल्यू इंटीजर आ रहा है या नहीं. तो यहां पे 0, ये 2, 3, 5 हो गया, 5 और ये 12 एंड ये 20, 2 कैरी, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7, 0 आ गया. 11, 18, 18 एंड 9, 27, 3, 30, 3 कैरी और ये 1, तो ये हो जाएगा 40. अच्छा यहां पे अगर मैं यहां पे काउंट करूं, सी मुझे कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये नहीं दिया है. यस बट मेरे पास कितने x के वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5. मतलब यहां पे n का वैल्यू 5 हो गया. सो 70 को 5 से डिवाइड किया, यस मुझे एग्जैक्ट आंसर मिलेगा एज व्हाट 14. एंड 40 को 5 से डिवाइड किया, मुझे एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है एज व्हाट 8. मतलब मेरे पास 14 आ रहा है एंड 8 आ रहा है. मतलब बोथ दिस वैल्यू आर इंटीजर वाला वैल्यू. सो ऑलवेज व्हेनेवर आई हैव माय x बार एंड y बार एज इंटीजर, यस मेरे आगे के कॉलम्स हो जाएंगे x माइनस x बार, y माइनस y बार, x माइनस x बार इंटू y माइनस y बार आ जाएगा. फिर आ जाएगा x माइनस x बार द होल स्क्वायर, y माइनस y बार द होल स्क्वायर. एंड यहां पे मैं लिख दूंगा एज x बार इक्वल टू एंड y बार इक्वल टू. अच्छा व्हाट इज x बार, तो समेशन x अपॉन n. व्हाट इज y बार, समेशन y अपॉन n. समेशन x मतलब यहां पे 70 by 5, आंसर इज 14 एंड ये हो जाएगा 40 अपॉन 5. सो ये आ गया 8. दिस इज y बार एंड दिस इज x बार. सो अब
ये 14 आया, 10 माइनस 14 तो ये हो जाएगा -4, 12 माइनस 14 ये हो जाएगा -2, 13 माइनस 14 ये हो जाएगा -1, 17 माइनस 14 will give me 3 and 18 माइनस 14 ये मुझे देगा 4 as value. 5 माइनस 8 तो ये हो जाएगा -3, 6 माइनस 8 ये हो जाएगा -2, 7 माइनस 8 ये हो जाएगा -1, 9 माइनस 8 ये हो जाएगा 1, 13 माइनस 8 ये हो जाएगा 5. अभी आएगा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, मतलब दिस इंटू दिस, ये सब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. अच्छा, -4 इंटू -3 यस ये हो जाएगा +12, -2 इंटू -2 ये हो जाएगा +4, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1, 3 इंटू 1 ये हो जाएगा 3, 4 5 ये हो जाएगा 20. यस, द मीनिंग ऑफ दिस इज यहाँ पे तो सारे वैल्यूज पॉजिटिव ही आ गए, तो आसान हो गया. अगर कुछ जगह पे प्लस आते हैं और कुछ माइनस वाले वैल्यूज आते हैं, तो सारे प्लस वाले वैल्यूज को एक साथ ऐड करो, सारे माइनस वाले वैल्यूज को एक साथ ऐड करो, एंड फिर प्लस माइनस को माइनस करो, एंड देन टेक साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. बट इस केस में तो काम आसान हो गया क्योंकि सब पॉजिटिव है. तो 2 + 4 6 हो गया, 6 + 1 7, 7 and 3 10 हो गया, 1 कैरी हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 2 + 2 4 हो गया, तो ये 40 आ जाएगा. अब x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर चाहिए, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, मतलब ये 16 हो गया, 2 का स्क्वायर 4. अच्छा, तो 4 है ना, तो मैं 04 लिखूंगा ताकि नंबर के नीचे नंबर आए. ये हो जाएगा 01, दिस इज 09 एंड दिस इज 16. यस, अभी 6 + 4 10 हो गया, 10 + 1 11 हो गया, 11 and 9 is 20 और ये 6 26, 2 कैरी हो गया, तो ये हो जाएगा 4 क्योंकि 1 + 1 ये 2 हो गया, एंड 2 + 2 4 हो गया. अभी आ जाएगा नेक्स्ट, यहाँ पे वैल्यू है -3 का स्क्वायर, सो ये 9 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, और ये 25 हो गया. टोटल करेंगे 9 + 1 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, 2 कैरी, 2 + 2 ये 4 हो जाएगा. सो 4 0 आ गया यहाँ पे वैल्यू. नाउ सिंस मुझे रिग्रेशन इक्वेशन x on y एंड y on x ये दोनों कैलकुलेट करना है, सो फॉर दैट पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होने चाहिए. सो आई विल राइट ओवर हियर एज byx इज इक्वल टू कोवेरिएंस x, y अपॉन सिग्मा x स्क्वायर, एंड यहीं पे मैं लिख दूंगा bxy इज इक्वल टू कोवेरिएंस x, y अपॉन सिग्मा y स्क्वायर. यस, इधर y on x का केस लिखेंगे, यहाँ पे x on y का केस लिखेंगे. सो वी हैव द फॉर्मूला एज 1 अपॉन n समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. अच्छा, ये फॉर्मूला कैसे डिसाइड होता है, अगर x बार एंड y बार का वैल्यू इंटीजर है तो ये वाला फॉर्मूला आएगा, ये और ये. यस, यहाँ पे भी सेम केस है, समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार आ जाएगा अपॉन 1 अपॉन n समेशन ऑफ y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर. यस, यहाँ पे दिख रहा है 1 अपॉन n इंटू समेशन है, 1 अपॉन n इंटू समेशन है, सो ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सेम वे यहाँ पे भी ये और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा. सो वी आर नाउ लेफ्ट ओवर हियर विथ दिस इज 40 डिवाइडेड बाय 46 and this is 40 divided by 40. We get the answer for this as 1 and the value for this as yes, ये 220 and 223 आ जाएगा. yes, इसको reduce किया तो we do one thing, हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ये 46 है, इधर 40 है, I'll say ये 0 हो जाएगा, so 0 तो ये 4 0 0 हो जाएगा. यहाँ पे मतलब यहाँ पे पॉइंट आया तो ये 400 हो जाएगा. अभी 46 इंटू 9 किया, ये 54 हो गया, 5 कैरी, 36 and 5 is 41. अरे ये नंबर तो बढ़ गया, तो 9 जा नहीं, तो अभी 8 जा ट्राई करते हैं. 48 4 कैरी 24, मतलब ये 32 है, सॉरी 24 नहीं, 4 8 जा है 32,
32 एंड 4 कैरी है तो 36 हो जाएगा। सो 3 6 8 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये सबट्रैक्ट किया तो ये 3 2 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे 46 इंटू 7 किया, ये हो जाएगा 42, 4 कैरी ये हो जाएगा 32, 322, बट इधर 320 है। यस, मतलब ये 7 जा नहीं तो यहाँ पे आएगा 6 जा। अच्छा, अभी मुझे 46 इंटू 6 करना पड़ेगा तो 36, 3 कैरी 27, 276 हो जाएगा। दिस इज 10 तो ये 4 हो जाएगा, दिस इज 11 तो ये भी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। यस, तो यहाँ पे 9 जा चल जाएगा बिकॉज इट इज 414। यस, अभी मुझे इसके आगे के डिजिट से मतलब ज्यादा नहीं है क्योंकि ये 0.869 आया, विच इज रफली 0.87। सो यहाँ पे BYX और BXY इसके वैल्यूज आ गए, बट यहाँ पे सम खत्म नहीं होगा बिकॉज हमें रिग्रेशन इक्वेशन ढूंढने बोला है। ये जो वैल्यू आए BYX और BXY के, दैट इज 0.87 एंड 1, ये मेरे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के वैल्यूज है। अब हम ढूंढेंगे रिग्रेशन इक्वेशन। सो यहां पे वैल्यू है एज y माइनस y बार इज इक्वल टू BYX इंटू x माइनस x बार, एंड ये साइड पे मैं लिखूंगा x माइनस x बार इज इक्वल टू BXY इंटू y माइनस y बार। यस, मतलब इसी के नीचे मैं ये वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा एंड इसी के नीचे ये वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा। सो वी हैव ओवर हियर y माइनस, अच्छा मेरा y बार का जो वैल्यू है वो कितना है 8, BYX का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0.87 इंटू x माइनस ये हो जाएगा 14, और यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 1 इंटू y माइनस 8। सो ये हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू 0.87x माइनस, अच्छा अभी 87 इंटू 14 करेंगे, उसका जो भी आंसर है उसको 2 से डेसिमल शिफ्ट करेंगे। यस, वी राइट ओवर हियर 87 इंटू 14, 7 4s are 28, 2 कैरी, ये हो जाएगा 32 प्लस 7 39 एंड 2 41, तो 1 आ गया 4 कैरी, 8 1s are 8 होता है और 4 12 हो जाएगा। सो आंसर आ जाएगा 12.18। सो ये हो जाएगा 12.18। सो y is equal to 0.87x माइनस 12.18 प्लस 8, ये माइनस 8 दूसरे साइड आएगा तो प्लस 8। सो वी हैव y is equal to 0.87x माइनस 12.18 प्लस 8 है तो माइनस 4.18 आ जाएगा। यस, ये बन गया मेरा रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। सेम वे रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y देखेंगे। सो x माइनस 14 इज इक्वल टू 1 इंटू, अरे तो ये y देगा 1 इंटू ये सेम वैल्यू, सो x इज इक्वल टू y माइनस 8 प्लस 14 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू y माइनस 8 प्लस 14, तो 14 माइनस 8 ये 6 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 6। सो ये जो इक्वेशन मिला मुझे, दिस इज माई y ऑन x का इक्वेशन, एंड ये जो इक्वेशन मिला दिस इज माई x ऑन y का इक्वेशन। एंड क्वेश्चन में खाली रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x एंड x ऑन y ये दो वैल्यूज ही ढूंढने बोले थे। सो विद दिस क्वेश्चन इज डन, वी मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट।